Hello dear students, today sequences and series miscellaneous exercise 2. See question number 19. Find square of 50 minus square of 49 plus square of 48 minus square of 47 plus square of 46 minus square of 45 plus and so on plus square of 2 minus square of 1. See the solution for this question. Since 50 square minus 49 square, it is a first set, plus 48 square minus 47 square, the second, plus 46 square minus 45 square, this is the third set or third term you can say, plus and so on, plus last term is square of 2 minus square of 1. Here we see that in the brackets, first number in every bracket is the square of even number. Here 50 square, 48 square, 46 square, and here 2 square. But second number is the square of odd numbers. Here 49 square, here 47 square, 45 square, and so on, and 1 square, means it is the last term. तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए कि हमें इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को सेपरेट ब्रैकेट्स में कलेक्ट कर लेना चाहिए। पहले सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, कलेक्टिंग द इवन नंबर्स इन द फर्स्ट ब्रैकेट हियर and odd numbers in the second bracket. So taking even numbers means sum of square of even numbers here. First one 50 square plus 48 square plus 46 square and so on plus square of 2. This is the first bracket and you can say it is square of even numbers from the given sequence. Minus here minus 49 square, minus 47 square, minus 45 square up to minus 1 square. So taking minus sign common and in the bracket here square of 49 plus square of 47 plus square of 45 plus and so on square of 1. So we see that in the first bracket here they are the sum of square of even numbers and here it is sum of square of odd numbers. So for the even numbers we can say they are the general term of 2r whole square, where r equal to 1 to 25. So using summations, so summation r equal to 1 to 25 2r whole square for the even numbers. If we put r equal to 1, we get here 2 square. If we put r equal to 2, so 2 into 2, that is 4 square. Similarly, if we put r equal to 23, we get 46 square. R equal to 24, 48 square, r equal to 25, this is 50 square. So this is the summation r equal to 1 to 25 to r square minus, for the second bracket they are the odd numbers, so they are the square of 2r minus 1, where r equal to 1 to 25. So using sigma notation also here, summation r equal to 1 to 25 to r minus 1 whole square. If we put the value of r equal to 1, 2, 3, 4, 5 and so on up to 25, so we get the numbers 1 square plus 2 square plus 3 square, 45 square, 47 square, 49 square, these numbers, because here if you put r equal to last value, that is 25, so 2 into 25 minus 1 square of 49, and if you put r equal to 1, so we get here 2 into 1 minus 1, that is square of 1. So they are in summation form, summation r equal to 1 to 25 square of 2r minus summation r equal to 1 to 25 square of 2r minus 1. Now it can be written as summation r equal to 1 to 25 square of 2r minus square of 2r minus 1 whole square, sorry square of 2r minus 1. और ऐसा हम लोग तभी लिख सकते हैं जब इन दोनों समेशन की लिमिट सेम हो। तो यहाँ भी r इक्वल टू 1 टू 25 है और यहाँ पर भी r इक्वल टू 1 टू 25 है, तो दोनों ही सिग्मा वैल्यूज को हम लोग मर्ज कर सकते हैं। तो r इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 टू 25 स्क्वायर ऑफ 2r माइनस स्क्वायर ऑफ 2r माइनस 1. नाउ ओपन द ब्रैकेट्स, वी गेट समेशन r इक्वल टू 1 टू 25 4r square for this term and square of 2r minus 1, this is 4r square minus 4r plus 1, but before this bracket a minus sign here,
So sign will be changed after opening the bracket. So we get here minus 4r square plus 4r minus 1. Now 4r square minus 4r square will be cancelled. So it is equal to summation r equal to 1 to 25 4r minus 1. This one 4r minus 1. So it is equal to 4 multiplied by summation r equal to 1 to 25 r minus r equal to 1 to 25 1. Now you know very well summation r is n into n plus 1 upon 2. So substituting the value of n equal to 25, so this will be 4 into 25 into 25 plus 1 upon 2, because summation r is n plus 1 upon 2. So put n equal to 25 and here summation 1 equal to n and put n equal to 25. So we get here 25. Now it's a simplest form. Here 2 2s are 4. So this will be 2 into 25 into 26 minus 25. So multiplying these three numbers, we get 1300 and minus 25 as it is. So subtracting it, we get 1275. Therefore, square of the given sequence here, square of 50 minus square of 49 plus square of 48 minus square of 47 and so on, plus square of 2 minus square of 1 is equal to 1275. So this is the final answer for question number 19. Now see question number 20. If 1 into 3 plus 2 into 5 plus 3 into 7 plus and so on up to n terms, entire upon cube of 1 plus cube of 2 plus cube of 3 plus and so on up to n terms equals 5 upon 9, find the value of n. तो हमें फाइंड करना है कि वैल्यू ऑफ n क्या है, यहाँ पर ये कितने टर्म्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिए जाएं कि इसका रेशियो 5 अपॉन 9 हो जाए। तो आइए इसके सोल्यूशन पर फोकस करते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है इसका। Since 1 into 3 plus 2 into 5 plus 3 into 7 plus up to n terms entire upon cube of 1 plus cube of 2 plus cube of 3 plus up to n terms equals 5 upon 9. So we see that in the numerator 1 into 3 plus 2 into 5 plus 3 into 7, this is the sum of up to n terms or the sum of product of two APs. So sum of the product of two APs means 1, 2, 3 they are in AP. तो इनका हमें फाइंड करना, देखो सबसे पहले फर्स्ट एपी लेना है कि फर्स्ट नंबर फ्रॉम ईच प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो फाइंड rth टर्म। तो अगर हम इसका rth टर्म फाइंड करें कि फर्स्ट नंबर फ्रॉम ईच प्रोडक्ट, तो rth टर्म हो जाएगा 1 प्लस r माइनस 1 इंटू डी दैट इज 1, जिसका डी भी 1 है। और सेकंड प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म 3 5 7, तो इसका फर्स्ट टर्म 3 है, 3 प्लस r माइनस 1 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला सेम यूज किया tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हम लोग फाइंड कर रहे हैं टी आर। सो यूजिंग हियर 1 प्लस r माइनस 1 इंटू डी एंड हियर 3 प्लस r माइनस 1 इंटू 2। सिंप्लीफाइंग दिस टू वी गेट r इंटू 2r प्लस 1। तो हमें मिल गया कि इसका जो rth टर्म है मीन्स rth टर्म ऑफ द न्यूमरेटर इज r इंटू 2r प्लस 1 and rth term of the denominator is r cube because it is sum of the cube of first r natural numbers, you can say for tr. तो tr equal to cube of r, क्योंकि देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या दिया है क्यूब ऑफ 1 प्लस क्यूब ऑफ 2 प्लस क्यूब ऑफ 3 प्लस अप टू n टर्म्स मीन्स सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। लेकिन हमें यहाँ पर टी आर फाइंड करना है, सो वी शुड राइट हियर डायरेक्टली r क्यूब। आफ्टर दैट यूजिंग समेशन, तो अब यहां से डायरेक्टली हमें ये स्टेप जो मिलेगा, यहां से देखो डायरेक्टली फ्रॉम हियर टू हियर इट कैन बी रिटन इन द समेशन फॉर्म, समेशन r इक्वल टू 1 टू n r इंटू 2r प्लस 1 एंटायर अपॉन समेशन r इक्वल टू 1 टू n r क्यूब इक्वल टू 5 अपॉन 9। नाउ मल्टीप्लाइंग these two brackets we get r into 2r plus 1 that is 2r square plus r. So they can be written as 2 into summation r square r equal to 1 to n plus summation r equal to 1 to n r entire upon summation r equal to 1 to n r cube equals 5 upon 9। तो आगे के
टर्म्स के लिए हम लोगों को जो यहाँ पर वैल्यूज यूज करनी है, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें समेशन आर स्क्वायर, समेशन आर एंड समेशन आर क्यूब मीन्स यहाँ पर 3 फार्मूले यूज किए जाने हैं। तो समेशन आर स्क्वायर का फार्मूला, फिर समेशन आर, ये दोनों न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट करना है, और समेशन आर क्यूब इन द डिनोमिनेटर, एंड इट इज इक्वल टू 5/9 विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो वी शुड फॉलो फॉर 5/9। 5/9 हमेशा हमें लिखते जाना है, और एंडिंग में अभी हम लोग जब ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो इसमें जो भी पार्ट कॉमन होगा कैंसिल होगा, कैंसिल करने के बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे का टर्म फॉलो करेंगे। तो समेशन आर स्क्वायर, समेशन आर और समेशन आर क्यूब, यदि किसी को फॉर्मूला नहीं मालूम है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लास्ट में देखिए एक लिंक प्रोवाइड की गई है, तो क्लिक ऑन दैट लिंक, यू विल गेट फॉर्मूला लिस्ट। जैसे लिंक को ओपन करोगे तो एक फार्मूला लिस्ट वहां पर ओपन हो जाएगी, वहां से सभी फार्मूले रिवाइज करके किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी फार्मूले को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो आइए फिर यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ समेशन आर स्क्वायर, सबसे पहले यहाँ पर है 2 इंटू समेशन आर इक्वल टू 1 to n आर स्क्वायर, तो इट इज 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, प्लस वैल्यू ऑफ समेशन आर n प्लस 1 अपॉन 2 and value of summation r cube, here n square into n plus 1 whole square upon 4 equals 5/9। अब इसमें हमें क्या करना है, we see that here n into n plus 1 upon 2 कॉमन, देखो इसको 2 into 3 कर देंगे तो n into n plus 1 upon 2 कॉमन इन सेकंड टर्म ऑल्सो, इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो। तो यहाँ पर n into n plus 1 upon 2 कॉमन, रिमेनिंग टर्म्स 2 into 2n plus 1 upon 3 plus 1, क्योंकि ये होल टर्म कॉमन हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा +1, और यहाँ पर 2n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन हो चुका है तो यहाँ 3 रिमेनिंग है, तो 2 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3 एंटायर अपॉन सेम डिनोमिनेटर n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स 5/9। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको वन टाइम कैंसल्ड, देखो n प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ भी वन टाइम n प्लस 1 एंड अपॉन 2, वन टाइम कैंसल्ड तो वन टाइम रिमेनिंग होगा, और यह अपॉन, तो हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो रिमेनिंग टर्म्स है 2 2 जा 4n प्लस 2 प्लस 3 एंड हियर बिकॉज 3 1 जा 3 एंटायर अपॉन 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय जो यहाँ पर टर्म आया क्या n प्लस 1 अपॉन 2, तो रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म हियर, तो मल्टीप्लाई हो गया 2/n प्लस 1 इक्वल टू 5/9। So this is 4n plus 5 upon 3 multiplied by 2 upon n square plus n equal to 5/9। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर बहुत ही क्लियर सोल्यूशन है, 5 इंटू 3, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू दिस साइड 9 इंटू 2 18 इंटू 4n प्लस 5, तो यहाँ पर 18 इंटू 4n प्लस 5, so 15 into n square 15n square plus 15 into n 15n equal to 72n and 18 into 5 90, therefore 15n square plus 15n minus 72n minus 90 equal to 0, taking all terms on the left hand side. After that, here it is 15n square and 15n minus 72n becomes minus 57n minus 90 equal to 0, and all these numbers are divisible by 3, so dividing by 3 here we get 5n square minus 19n minus 30 equal to 0. Now factorize 30 into 5 becomes 150, so factorize 150 whose difference is minus 19, तो इनके जो factors होंगे minus 25 and 6 plus 6 are factors, तो splitting the middle term 5n square minus 25n plus 6n minus 30 equal to 0. Now taking 5n common from the first two terms, so 5n into n minus 5 plus 6 common n minus 5 equal to 0. Therefore n minus 5 into 5n plus 6 equal to 0. So if n minus 5 equal to 0, then n equal to 5. If 5n plus 6 equal to 0, then n equal to minus 6 upon 5. As n belongs to n is a natural number, therefore n is not equal to minus 6 upon 5. तो हमें कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, n equal to 5.
देयरफॉर n इक्वल टू 5 मीन्स अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स 5 लेते हैं इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, तो वी गेट द रेशियो ऑन द राइट हैंड साइड 5/9। तो यहां पर जो वैल्यू ऑफ n है n इक्वल टू 5। अब आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो ये अपना जो 21 क्वेश्चन है, फॉर अ जीपी इफ T2 इक्वल टू 7 T4 इक्वल टू 1575 फाइंड ए। तो यहां पर ए है फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ T2 मीन्स सेकंड टर्म इक्वल टू 7 and fourth term that is T4 equal to 1575, find A that is first term. See the solution for this question। तो ये क्वेश्चन अभी सबको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल वे से कर सकते हो। और ये हमारा जो एक्सरसाइज था प्रीवियस एक्सरसाइजेस उसमें से ये क्वेश्चंस उसी टाइप के लिया गया है यहाँ पर। Since nth term of GP means Tn equal to A into R raised to n minus 1, this is the formula. Since T2 equal to 7, therefore T2 equal to AR raised to 2 minus 1, that is AR equal to 7, and let it be equation number first. So AR equal to 7, equation first, and T4 equal to 1575 given. Therefore fourth term T4 equal to A into R raised to 4 minus 1, that is AR cube equal to 1575, and let it be equation number 2. तो आफ्टर गेटिंग दीज टू इक्वेशंस, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, इन दोनों ही इक्वेशन को डिवाइड कर देना चाहिए। तो डिवाइडिंग दीज टू इक्वेशंस वी गेट इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1। तो ए आर क्यूब अपॉन ए आर, यहाँ से ही देख सकते हो, ए आर क्यूब अपॉन ए आर इक्वल टू 1575 अपॉन 7, एंड 1575 इज डिविजिबल बाई 7। तो इस 7 से इजिली डिवाइड होता है, यहाँ डिवाइड कर देते हैं। तो 1575 upon 7 becomes 225. Here a going by a and r cube upon r becomes r square. So r square equal to 225. Therefore r equal to 15. Taking square root on both sides. और चाहे तो यहाँ पर प्लस माइनस 15 भी यूज किया जा सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस 15 यूज करेंगे तो वी गेट टू वैल्यूज ऑफ ए। लेकिन हमें यहाँ पर अगर सिंगल वैल्यू रखनी है तो टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए आर इक्वल टू 7, substituting the value of r equal to 15, here we get a into 15 equal to 7, a into 15 equal to 7, therefore a equal to 7 upon 15. So this is the final answer for a equal to 7 upon 15। या अगर यही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है तो मे बी -7 अपॉन 15 भी आंसर दिया हो सकता है। तो हमें दोनों आंसर की तरफ जाना है कि +-7 अपॉन 15 भी लिख सकते हो। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर क्वेश्चन है तो वहां पर +-7 अपॉन 15 भी हो सकता है, या ओनली 7 अपॉन 15 या -7 अपॉन 15। ये आंसर हमें अपने अंडरस्टैंडिंग से वहां पर रखना है कि हमें आंसर क्या दिया गया है। और अगर ओनली वन आंसर है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर बोथ आंसर है तो प्लस माइनस एक ही ऑप्शन में दिया रहेगा। तो यहाँ पर अगर चाहें तो क्वेश्चन नंबर, ये फॉर्मूले को एक बार वापस से देख सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20th, ये क्वेश्चन नंबर 20th, इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एपीज इन द न्यूमरेटर एंड दिस इज द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये दिया है यहाँ पर। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी कभी यहाँ पर 3 प्रोडक्ट भी होते हैं, कभी 4 प्रोडक्ट भी हो जाते हैं। तो अगर जितने ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्ट होंगे उतने ज़्यादा यहाँ पर अटेंशन रखने की ज़रूरत है। और सभी प्रोडक्ट के फर्स्ट टर्म, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म, देन सेकंड प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म, अगर 3 है तो थर्ड, 4 है तो फोर्थ टर्म, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका टी आर फाइंड करना है। सबसे पहले तो ऑब्जर्व करना होता है कि हमारा जो सीक्वेंस है वो कौन सा सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो एपी के फार्मूले यूज करो, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो जीपी के फार्मूले यूज करो। तो यहाँ पर 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स, तो हमें यहाँ पर फाइंड करना था टी आर।
क्योंकि हम rth टर्म यूज करेंगे तो हम लोग इसमें समेशन फॉर्म में सिग्मा नोटेशन में इजिली लिख सकते हैं। तो टी आर इक्वल टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। तो अगर हम लेते हैं 1 2 3 तो देखो 2 माइनस वन 1, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है तो 1 प्लस आर माइनस वन इंटू डी। और जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 1 प्लस आर माइनस वन मिलेगा, तो 1 एंड माइनस वन विल बी कैंसल्ड, वी गेट आर। इसके लिए जो इसका टी आर है वो यहाँ पर ये लिखा गया आर, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट के लिए। और सेकंड ब्रैकेट के लिए हम लोग सेकंड प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म यूज करेंगे, 3 5 7 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस 5 माइनस थ्री दैट इज 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस आर माइनस वन इंटू 2। और जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे 2r माइनस टू, तो 3 प्लस 2r माइनस टू दैट इज 2r प्लस वन। तो ये हमें कंबाइंड फॉर्म में मीन्स मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में जो rth टर्म यहाँ मिलता है, क्योंकि ये नंबर्स जो यहाँ सीक्वेंस के टर्म्स हैं ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो जो हमें यहाँ पर rth टर्म मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे r इंटू टू आर प्लस वन। ये तो हो गई न्यूमरेटर की बात। अब जो डिनोमिनेटर यहाँ दिया है ये 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, तो अभी अभी हमने फाइंड किया कि 1 2 3 आर इन एन एपी, तो उसका हमें rth टर्म जो मिला था क्या मिला था, r। तो अगर हमारे सभी टर्म्स का क्यूब है यहाँ पर r का क्यूब कर दिया गया, और इसी टर्म को हमें समेशन फॉर्म में यूज करना है। तो देयरफॉर अब ये जो स्टेप है हमारा, दिस स्टेप कैन बी रिटन इन द समेशन फॉर्म हियर। समेशन r इक्वल टू 1 टू n r इंटू टू आर प्लस वन entire upon summation r equal to 1 to n r cube equal to 5 upon 9। अब हमें सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को ओपन करना होता है। ऐसा हम कभी नहीं मिस्टेक करेंगे कि वन टाइम आर आर कैंसल्ड, नो इट इज रॉन्ग। सबसे पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, 2r स्क्वायर प्लस r अपॉन समेशन r इक्वल टू 1 टू n r क्यूब। और इनके तीनों ही टर्म के, तीनों टर्म का मतलब समेशन r स्क्वायर, देखो यहाँ 2 कांस्टेंट है सो टेकन आउट 2, summation r equal to 1 to n r square plus summation r equal to 1 to n r entire upon summation r equal to 1 to n r cube equal to 5 upon 9। अब हमें सेपरेटली ये तीनों ही टर्म के फॉर्मूले यूज करने हैं। तो तीनों टर्म का जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है, समेशन r स्क्वायर, समेशन r एंड समेशन r क्यूब, ये तीनों का फॉर्मूला यूज करके हमें इसको बहुत ही केयरफुल्ली सिंप्लीफाई करना होता है। ये सिंप्लीफाई पूरा टर्म करने के बाद यहाँ पर जो भी टर्म आएगा फिर हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और क्रॉस जैसा कि यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इनको फिर कॉमन करने के बाद जो भी टर्म आया फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 15n स्क्वायर माइनस 57n माइनस 90 इक्वल टू 0। तो हियर ऑल दीज थ्री टर्म्स मीन्स 15 57 एंड 90 आर डिविजिबल बाई 3। तो यहां से हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाई 3 ऑन बोथ साइड्स, वी गेट 5n स्क्वायर माइनस 19n माइनस 30 इक्वल टू 0 एंड 30 इंटू 5 ये आता है हमारा, देखो माइनस 30 इंटू 5 माइनस 150, तो नेगेटिव साइन है तो फैक्टराइज 150 हुज डिफरेंस इज माइनस 19। तो यहाँ पर अभी बोल सकते हो कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके आगे को सबको पता ही है, इसको हम फैक्टराइज करके फिर कॉमन करते हैं और फाइनली वी गेट वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 5। Actually we get two values of n equal to 5 and n equal to minus 6 upon 5, but number of term will not be negative, और यहाँ तो fraction भी है तो number of term will not be negative, will not be fraction, therefore n is not equal to minus 6 upon 5। तो उसका सीधा सा रीजन यहाँ दे सकते हो कि as n belongs to n, that is n is a natural number, therefore n is not equal to minus 6 upon 5। तो जो acceptable value है n equal to 5 मीन्स अगर हम लोग इक्वेशन को 5 टर्म्स को यहाँ पर यूज करते हैं, ओनली 5 आइटम्स इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो वी गेट इट्स रेशियो 5 अपॉन 9। क्योंकि ये 1 2 3 टर्म तो लिखा ही है, अगर इसी तरह से हम लोग 2 मोर टर्म्स यूज करते हैं और यहाँ पर भी 2 मोर टर्म्स यूज करते हैं, और उनका सभी नंबर का अगर हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देखें और सबको प्लस करें, फिर यहाँ पर भी सबका क्यूब करके प्लस करें ऑल द 5 टर्म्स, तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो 5 अपॉन 9 होगा। ये प्रैक्टिकली डायरेक्टली एक्सपेंड करके भी देखा जा सकता है, लेकिन जब तक हमारे पास n की वैल्यू नहीं थी तो हम लोग जनरल टर्म में ही जा करके n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर n इक्वल टू 5 स्मॉल नंबर है तो हम 5 टर्म्स को लिख करके, अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो यहाँ आगे के जो टर्म्स हैं 4 इंटू
9 और उसके बाद फिर आगे आएगा 5 इंटू 11 और यहाँ 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। इस सभी का रियल मल्टीप्लिकेशन करें और फिर उसके बाद ऐड कर दो न्यूमरेटर का पूरा, एक नंबर आ जाएगी। और फिर यहाँ डिनोमिनेटर में सभी नंबर का क्यूब करके कब कहाँ तक लेना है, 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब तक। टू मोर नंबर्स आएंगे, सबका क्यूब करके ऐड कर दो, तो जो इनका सिंपलेस्ट फॉर्म आने वाला है वो है 5/9। ये है मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन ये तभी कर सकते हो व्हेन वी गेट वैल्यू ऑफ n, और n की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए सभी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्वेश्चन इज सो सिंपल। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है इन ऑल दीज 3 क्वेश्चंस और अदर क्वेश्चंस, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। For the remaining question of the miscellaneous exercise and for the remaining chapters and for the competitive exam questions, देखते रहिए हमारे coming videos. Thank you so much.